Hello students, today I am going to start first topic, chemical reaction and equation. This is the first video of the related topic. So before starting the topic chemical reaction and equation, let's see what are the types of changes in matter. What is matter? Anything which occupies space and has mass is called matter. And in regarding this, there are the two types of changes. The first one is physical change, and the second one is chemical change. Physical change, the process in which no new substances are formed are called physical change. यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसको हम क्या कहते हैं? That's are called physical change. क्या एग्जाम्पल हो सकता है? Melting of ice. Melting of ice is the example of physical change. And the second one is evaporation of water. पानी का उबलना, evaporation of water. And we can take more example. Another, चीनी का पानी के अंदर घुलना. That's called dissolution of water. Dissolution of sugar in water. There are several examples in front of us regarding this change. Means total positive thing is that no new substances are formed in physical change, but except it, the process in which the original substance lose their nature and identity and form new chemical substances with different properties. Are called chemical change. यानी अगर इसके एस्पेक्ट में देखें तो यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि यहाँ मूल स्वभाव उस पदार्थ का वैसा ही रहता है. यहाँ पर जो हमने पदार्थ सब्सटेंस लिया है उसका मूल स्वभाव भी रहता है, उसकी आइडेंटिटी भी लूज हो जाती है और नए गुणों के साथ, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, नए चेंजेस के साथ क्या बनता है? सब्सटेंस बनता है. उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं. व्हाट वी कैन टेक, आपने देखा होगा टर्निंग ब्राउन ऑफ freshly prepared apple. इसके अंदर चेंज हो जाता है. अगर हम एप्पल को काटे, इसके साथ चाकू से काटे तो जो व्हाइट है और कलर का उसके ऊपर कैसा कलर आ जाता है? ब्राउन कलर आ जाता है. आपने कई बार इस घटना को देखा होगा. ठीक है. इन द एयर, एप्पल इन द एयर is the first example for chemical change. And the another one is cooking of food. What general example है? Cooking of food. And another one is digestion of food in our body. Digestion, भोजन का पचना, and respiration. There is another good example for chemical change. Now let's see, when the reaction occurs, so there are the two parts. The first one is reactant and the second one is
take part in a chemical reaction are called reactant, whereas those substances which form after a chemical reaction is called a product. So there is a equation A plus B 2 for C. In this equation, A and B are the reactant, whereas C is the product. And there is an arrow in one direction from reactant to product. We symbolize the reactant and product between this arrow. हम एरो को बीच में लेकर के आते हैं. एरो जो होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है. So this one is about the reactant and product. Now let's see what is the chemical reaction. Chemical reaction क्या होती है उसको देखते हैं. So what is the meaning of chemical reaction? टॉपिक का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सिंपली रासायनिक अभिक्रिया हम इसको हिंदी में कहते हैं. ए केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ किसका जी? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन. और we can say a chemical reaction simply involves the rearrangement of atoms. रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन में नया कुछ नहीं होता, बस केवल क्या होता है rearrangement of atoms. For example, first when a magnesium ribbon burns in the presence of oxygen. अगर मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्न करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहां हमने क्या किया? एक मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने उसको बर्न किया, जो कि वी नो वेरी वेल दैट कि ऑक्सीजन इज ए लाइफ सपोर्टिंग गैस एंड हेल्प्स टू बर्न द सब्सटेंस. क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. सेकंड, अगर हम देखें ये रिएक्शन है इसके बीच में, रिएक्शन बिटवीन, अनदर एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन किसके बीच में जी? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड. लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड. अगर हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं, क्या बनता है? इक्वेशन हो जाएगा आपका लेड नाइट्रेट प्लस यहां आ जाएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड, और ये मिलकर के बनाएगा साहब क्या बन जाएगा? लेड आयोडाइड. और इसका भी क्या आता है? येलो प्रेसिपिटेट आता है और बनता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट. पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन. अब ये कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? ये आइडेंटिफाई किया, जो येलो कलर आ रहा है इसका लेड आयोडाइड का. अगर हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है. अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेना चाहें, व्हेन जिंक की क्रिया हम किसके द्वारा कराएं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं. व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड क्या होता है जी? हाइड्रोजन गैस. तो किसके द्वारा पहचाना जाता है कि रिएक्शन अगर हो रही है? हाइड्रोजन के द्वारा पहचाना जाता है. हाइड्रोजन गैस बनती है इस अभिक्रिया में. जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है. So after the definition of chemical reaction, we will study about the characteristics of a chemical reaction.
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रासायनिक अभिक्रिया के अंदर नजर आती है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को विदिन शॉर्ट हम कहते हैं PPT, formation of precipitate in a chemical reaction. Some of the chemical reactions are characterized by the formation of precipitate. Let's see the example. Lead nitrate chemical formula is PbNO3 plus potassium iodide. When lead nitrate reacts with potassium iodide to form lead iodide and potassium iodide. यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। लेड नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ होती है तो लेड आयोडाइड का क्या बनना है, येलो प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड, एन एरो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये क्या इंडिकेट करता है, इट शोज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन का। सेकंड आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड इज इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जांपल, जिंक, when zinc reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas, and an arrow in upward direction shows the evolution of gas. Now, third characteristic change in color. Some of the chemical reactions are characterized by change in color. For example, rust is brown in color. आपने देखा होगा रस्ट जो होता है ब्राउन कलर का होता है, whereas iron is greyish black in color. आयरन जो होता है वो ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और जो रस्ट होता है वो ब्राउन कलर का होता है। एंड when iron reaction, अगर हम केमिकल इसका देखें, when iron reacts with कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज ब्लू इन कलर। आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव्स टू फॉर्म आयरन सल्फेट प्लस सी। तो इसके कलर को, जो ब्लू कलर हमने लिया है, इसके कलर को क्या कर देगा, ये फेड कर देगा और कैसा बन जाता है, ये कलर आता है यहाँ ब्लू टू ब्राउन के अंदर चेंज हो जाता है। सो when a chemical reaction occurs, there is a more possibility to change the color. यहाँ आयरन की क्रिया हमने कॉपर सल्फेट के साथ की, फेरस सल्फेट बना और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। Now another one is change in state. Some of the chemical reactions are accompanied by change in state. जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का 2H2O। वाटर यहाँ पर ये किस स्टेट में है, यहाँ स्टेट मेंशन कर देंगे। वाटर यहाँ लिक्विड स्टेट के अंदर है और हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ मिलेगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बोथ आर द गैसेस। दोनों की दोनों क्या है, गैस है। इसी तरीके से ये रिएक्शन को उल्टा करें, 2H2 ये गैस है, वाटर के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और क्या बनाती है, वाटर बनाती है। 2H2O होता है लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। अब हम यहाँ स्टेट को मेंशन भी कर सकते हैं, क्या लिख करके, जी लिख करके स्टेट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है नी, और एक और लास्ट वस्तु है आपकी, दैट इज नंबर 5, चेंज इन टेम्परेचर। Some of the chemical reactions are accompanied by the change in temperature.
कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर से हीट इवॉल्व होती है। ऐसी दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिनके अंदर से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना, इसमें अगर हम वाटर को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, हम प्रोडक्ट साइड के अंदर चेंज इन टेंपरेचर, प्रोडक्ट साइड के अंदर ये क्या है, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे पता लगेगा, ये जो ये रहा हमारा प्रोडक्ट में प्लस हीट के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं, और अगर हम इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेनिड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड such type of chemical reactions are known as endothermic reaction. For example, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का OH, अगर हम इसकी क्रिया किसके साथ कराएं, अमोनियम क्लोराइड के साथ कराएं, नौसागर भी कहते हैं इसको, बनेगा आपका BaCl2, बेरियम क्लोराइड बनेगा और आपका रहेगा NH4OH और क्या निकलेगा माइनस। हमें इस अभिक्रिया को करने के लिए हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ आपका आया माइनस हीट। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्लस हीट shows as exothermic reaction, minus heat shows endothermic reaction. Exo means outside यानी जिसमें हीट निकलती है, that's called exothermic reactions, whereas minus heat, minus का मतलब endo means within, यानी जिसको हमें करने के लिए, रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हीट देनी होती है, that's called endothermic reactions. So these are about the characteristic of a chemical reactions. Now let's see what is chemical equation. So let's see chemical equation. What is chemical equation? A schematic representation. How we can define a schematic representation? Chemical equation क्या होता है? A schematic representation of any chemical reaction, of any chemical reaction. किसके टर्म्स में? With the help of symbols, with the help of symbols or formula of कौन से वेरियस स्पीसीज is called chemical equation. अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो इसमें कहा गया इट इज अ सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसके साथ, सिंबल के साथ और उनके फॉर्मूला के साथ क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या क्या होता है जी केमिकल इक्वेशन के अंदर? द रिएक्टेंट, वन इज रिएक्टेंट। नियम क्या है? नियम ये कहता है कि रिएक्टेंट को हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वेयर एज प्रोडक्ट शुड बी ऑन राइट साइड। और क्या होना चाहिए, इनके बीच में एक एरो होना चाहिए जो दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। रिएक्टेंट शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, वेयर एज प्रोडक्ट शुड बी ऑन राइट हैंड साइड। और सपोज दैट देयर इज ए रिएक्शन A plus B is equal to C plus D, और सपोज करो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये दो रिएक्टेंट है, A and B are the reactant in this reaction, तो इनके बीच में क्या आ रहा है, प्लस साइन शुड बी देयर, यानी अगर एक से अधिक रिएक्टेंट है तो
तो उनको शो करने के लिए हमें क्या रखना है, प्लस साइन रखना है। ये आप बातों के रिएक्टेंट को लेकर, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, यहाँ दो ही प्रोडक्ट है C और D, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है। ये भी हमने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स से मिला हमें कि एक रिएक्शन को हमें क्या बनाना, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना। वो भी हम देखेंगे मोर इन्फॉर्मेटिव, हाउ वी कैन मेक द रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो बात आ गई यहाँ पर, ये रिएक्टेंट हो गया और ये आपका हो गया प्रोडक्ट, और ये बीच में क्या आ गया, ये एरो आ गया। तो इस तरीके से हम क्या शो करते हैं, इन रासायनिक समीकरणों को हम शो करते हैं। क्या क्या आवश्यकता होती है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ए केमिकल इक्वेशन शुड इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिएक्शन। क्या क्या होना चाहिए, नंबर 1, इट शुड रिप्रेजेंट, ये कैसी होनी चाहिए, इट शुड रिप्रेजेंट ट्रू केमिकल चेंज। इसके अंदर वास्तव में क्या होना चाहिए, एक रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, केमिकल चेंज को इंडिकेट करे। दूसरा, इट शुड बी बैलेंस्ड, और कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ये एसेंशियल्स हैं किसी भी एक केमिकल इक्वेशन के लिए। एंड इट शुड बी मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर होनी चाहिए। एंड इट शुड रिप्रेजेंट द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, इसको क्या करने के लिए, दिखाने के, शो करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए किसके अंदर, ताप के अंदर, चेंज इन टेम्परेचर। सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, अब हम उनको देखने वाले हैं कि यदि हमें एक रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण लिखनी है तो व्हाट आर द स्टेप्स टू नेसेसरी टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कौन कौन से स्टेप होने चाहिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स फॉर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। What are the steps necessary? There are the 3 steps. The first step 1. कौन से 3 steps हैं? सबसे पहला स्टेप है राइटिंग बेसिक स्केलेटल इक्वेशन। क्या लिखना है जी, हमें बेसिक स्केलेटल इक्वेशन, राइटिंग बेसिक स्केलेटल इक्वेशन। क्या लिखना है, स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। अब ये स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, तो ए स्केलेटल इक्वेशन इज एन इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, ए स्केलेटल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट आइडेंटिफाइज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी क्या आइडेंटिफाई करती है, ये हमें इस रिएक्शन को देखने से पता लगता है कि केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस बाय देयर केमिकल फॉर्मूला इट मे और मे नॉट बी बैलेंस्ड। ये कैसी हो सकती है, ये बैलेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सेकंड स्टेप, दूसरे स्टेप के अंदर क्या लिखेंगे जी, स्टेप 2। सेकंड स्टेप आ जाता है आपका राइटिंग प्रॉपर केमिकल इक्वेशन। प्रॉपर तरीके से हमें क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन को लिखना है, राइटिंग प्रॉपर केमिकल इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, यहां हमें उसकी क्या सबसे पहले नोट करनी है, फिजिकल स्टेट नोट करनी है। किस स्टेट के अंदर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सॉलिड के अंदर है तो सॉलिड मेंशन करेंगे, लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड मेंशन करते हैं, गैस के अंदर तो गैस मेंशन करते हैं, और लिक्विड में है तो आजकल क्या AQ एक्वस के द्वारा भी हम उसको शो कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, और अगर AQ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, दैट इज इन aqueous condition and the specific conditions necessary for the chemical reaction। जो भी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं रिएक्शन की वो भी क्या है, नेसेसरी है। एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। देखो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को अभी हमने डिस्कस किया, डाउनवर्ड एरो के द्वारा शो करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम अपवर्ड एरो के द्वारा शो करेंगे। यानी ये सब इस रिएक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। ठीक है जी, यानी आपका फिजिकल स्टेट आ गया, अगर फॉर्मेशन हो गया प्रेसिपिटेट की तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आ गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस आ गया। एंड और दूसरी बात आती है टेम्परेचर।
ठीक है। अगर हमें उसको गर्म करना है तो इस साइन के द्वारा हीट करना है, तो ये है डेल्टा साइन जो इसके एरो के ऊपर हमें लिखा हुआ नजर आएगा। इसके द्वारा हम उसको शो करते हैं। इफ जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कब होगा? कैसा? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब है ये हीट यहां हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का, और ये टूट जाएगा आपका CaO और CO2। कैल्शियम ऑक्साइड किस स्टेट में मिलेगा? आपको सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेगा, और CO2 एरो शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किस स्टेट में है? गैस स्टेट में। चाहे तो हम यहाँ पर गैस लिख सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से हमें क्या करना होता है? शो करना होता है। अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है तो प्लस हीट या प्लस एनर्जी, और एंडोथर्मिक है तो माइनस हीट और माइनस एनर्जी। किधर? प्रोडक्ट साइड में। फॉर एग्जांपल जैसे A प्लस B फॉर्मेशन हुई C तो प्लस हीट, इट शोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। A प्लस B इज इक्वल टू C माइनस हीट, इट शोज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हो गए आपके दो स्टेप। और तीसरा और सबसे लास्ट स्टेप है आपका राइटिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें क्या लिखना है? थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड स्टेप बनता है आपका, हमें कैसी इक्वेशन लिखनी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है। हमें अपना क्या करना है? कौन से नियम का पालन करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है? नाइदर द इक्वलाइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स। इक्वलाइजेशन होना चाहिए किधर का? रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इनका इक्वलाइजेशन होना चाहिए ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच स्टेट्स दैट मैटर neither be created nor be destroyed. So students, हमने देखा क्या what are the steps ready for a chemical equation. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यही से शुरू करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन से हम नेक्स्ट वीडियो को शुरू करेंगे। तब तक आप इसको देखें, इनकी प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है, और इनको नोट डाउन करें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।